हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लास। आज हम लोग मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया में नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट विल पिक अप सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को हम कैसे कैप्चर करते हैं? सो डेफिनेटली इज द एनर्जी दैट वी रिसीव फ्रॉम द सन, और solar energy is it refers to the capturing of the energy from the sun and subsequently converting it into electricity। यानी सन के एनर्जी को जो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, और एंड दिस इज नोन एज सोलर एनर्जी। नाउ सोलर एनर्जी uses capturing sunlight to create photovoltaic power और concentrated solar power। तो जो सोलर एनर्जी को हम ट्रैप करते हैं वो है फोटोवोल्टिक पावर या कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर फॉर सोलर हीटिंग, एंड द एनर्जी कन्वर्जन अलाउ द सोलर एनर्जी टू बी यूज्ड इन पावर ऑटोमोटिव्स, लाइट, हीटर्स एंड गैजेट्स। यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हम बहुत जगह पे कर सकते हैं, इन ऑटोमोटिव्स, लाइट्स, हीटर्स, गैजेट्स, अलग अलग गैजेट्स में। तो इस तरह से हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यू कैन सी द सोलर पैनल्स की मदद से हम सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। सो सोलर सेल्स जो होते हैं दे आर फोटोवोल्टिक सेल्स। इन सेल्स की मदद से हम सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। सोलर सेल से एक सोलर पैनल बनता है और उस पैनल की मदद से हम वी कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सन। सो यू कैन सी द सोलर सेल, its internal design. You can see these are solar cookers. This box also contain a cooker, और इसमें we can cook food, यानी खाना बना सकते हैं by using the solar energy. This is the panel. This is capturing the solar energy. You can see another picture, the panel which is capturing the solar energy and the food is being cooked here. So what are the solar power projects in India? Here is a long list of solar power projects in different states: Karnataka, Tamil Nadu, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra. So there are different solar power projects all over India. Now let's learn about the Jawaharlal Nehru National Solar Mission. So this is known as JNSM. So Jawaharlal Nehru National Solar Mission was launched on 11 January 2010, and the mission was set in an ambitious target of deploying 20,000 megawatt of grid connected to solar power by 2022. तो इस मिशन का जो मोटिव था to produce a lot of energy by harnessing solar power. At present, solar power installed capacity by 31st of March 2016 is 6742.85 megawatt. So now we have reached this goal, and let's see in future we might be able to harness the solar energy in a better way. Now what are the advantages? यानी solar energy का advantages क्या होता है? Definitely it is renewable source, non-polluting and available planet-wide. Means all over the planet this energy can be harnessed. It is environment friendly because the solar cells, they do not release any kind of greenhouse gases, so they are environment friendly. The technology development is visible as the solar cells don't make any noise while collecting energy, and there is no noise, no pollution while collecting energy, and it is much cheaper compared to the conventional sources. एक बार अगर हम लोग सोलर पैनल सेटअप करेंगे, वट एवर इज द एक्सपेंस, लेकिन लॉन्ग रन में दैट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द सोलर बाय कन्वर्टिंग द सोलर एनर्जी, दैट बिकम्स वेरी वेरी चीप. सो इट इज़ कंपैरेटिवली चीपर. कन्वेंशनल सोर्सेज के मुकाबले कंपैरेटिवली ये बहुत चीप है. सेल्फ सफिशिएंट एंड डोंट रिक्वायर टू बी कनेक्टेड टू पावर ग्रिड. इसको अलग से पावर ग्रिड की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ सेल्फ सफिशिएंट. So these are the advantages. Let's see the disadvantages. Initial cost is quite high. Initial cost थोड़ा ज़्यादा होता है, and it is dependent on weather. अगर
धूप नहीं है, it's quite cloudy, then it becomes difficult to harness this energy. Solar energy storage is expensive. So till now a cheaper mode of storage is not available. थोड़ा expensive होता है, and it uses a lot of space to set a solar panel. सोलर प्लांट विद सोलर पैनल को सेट करने के लिए काफ़ी स्पेस लगता है. सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस. लेकिन जो एडवांटेजेस है इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. सो वी कैन इग्नोर द डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस आर फार मोर beneficial and far more positive. So let's see the next source of energy. तो next जो है इसमें हम पढ़ेंगे विंड एनर्जी के बारे में. तो लेट्स सी विंड एनर्जी को हम कैसे हार्नेस करते हैं और वो है क्या. विंड एनर्जी इज डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच विंड इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. जब हम विंड के पावर को इस्तेमाल करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड विंड एनर्जी. तो विंड टर्बाइन की मदद से हम कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इनटू मैकेनिकल पावर, और दिस मैकेनिकल पावर कैन बी यूज फॉर स्पेसिफिक टास्क. इस मैकेनिकल पावर से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे ग्रीनिंग ग्रेन और पंपिंग वाटर, और जनरेटर कैन कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी. तो हम विंड टर्बाइंस की मदद से विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. You can see in the picture, these are wind turbines, and you will see open areas में या समुद्र के किनारे यानी sea coast में ज़्यादा होता है, where the wind is quite speedy. यहाँ पे तेज़ हवा का चलना बहुत ज़रूरी है, otherwise these turbines won't work. So it's very important for the wind to move quite. Wind should be swift enough to move these turbines. So how wind energy is produced? Let's see. A wind turbine captures the wind, which then produces a renewable source of energy. The wind makes the rotor spin. As the rotor spins, the movement of the blade drives a generator that creates energy. The motion of the blades turning, it is kinetic energy, and it is this power that is converted into electricity. यानी विंड टर्बाइन से जो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है विंड का, उस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू इलेक्ट्रिसिटी. सो इट्स मोर और लेस लाइक सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी को भी सोलर पैनल के थ्रू कैप्चर किया जाता था और उससे उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में. और विंड में, इस विंड एनर्जी में भी वी यूज द टर्बाइंस टू कन्वर्ट और टू चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इनटू electricity. So what are the advantages? Definitely यहाँ हम देखेंगे कि सिमिलर होता है, यानी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों ही inexhaustible sources है. They are freely available and they are non-polluting, they are renewable. तो ये सारे advantages सिमिलर होते हैं. So you can just learn one and write for all. Now, they doesn't pollute the environment. They do not pollute the environment, and even remote areas that are not connected to the power grid can depend on windmills. अगर तेज़ बहती हवा है तो even remote areas में भी windmills को लगाकर हम electricity produce कर सकते हैं. No need of being connected to the power grid. So these are the advantages. अगर disadvantage की बात करें तो they are no doubt dependent on the strength of the wind. विंड का स्ट्रेंथ क्या है, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हाउ मच एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस. विंड टर्बाइंस आर नॉइजी एंड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ विंड टर्बाइन पोल्यूशन अकर्स. सो दिस इज एन डिसएडवांटेज. एंड मोर ओवर लार्ज विंड फार्म्स आर नीडेड टू कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड टू इलेक्ट्रिसिटी. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी. नाउ इंडिया में विंड एनर्जी के बारे में अगर हम जाने, सो मोस्टली द कोस्टल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, इन जगहों पर सबसे ज़्यादा हवा जो है वो तेज़ होती है, बिकॉज दे आर द कोस्टल एरियाज. सो दे आर आइडियल फॉर द यूज और फॉर प्रोड्यूसिंग wind energy, that is producing electricity by using harnessing wind energy.
India has the fifth largest installed wind power capacity in the world. So it's quite commendable. India has the fifth largest installed wind power capacity. And in 2015, the MNRA set the target for generation of wind power by 2022 to be 60,000 megawatt. इन एक टारगेट सेट किया गया एंड 31 मार्च 2016 तक ये पहुंच गया 26,743 megawatt. So this is the latest data we have एंड दिस मीन्स दैट हमारे पास बहुत पोटेंशियल है और आगे आने वाले समय में हम विंड और सोलर एनर्जी को हार्नस करके बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे विच विल बी नॉन पोल्यूटिंग and which will be inexhaustible, and it will also be environment friendly. So students, that's all about solar and wind energy. Thank you. See you all in the next class.